of the IIS deemed to be university based in Jaipur, we have this lecture here today, which is a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. And all over the country, as you are all aware of, that we are celebrating 75 years of India's freedom. Are you all aware? Yes? And it will continue up to August 2023. We are also celebrating from the 15th to the 30th of November as India, the mother of democracy. Right? We have the democracy which has developed in India in a very fine way, right from the Vedic period until today. So we are one of the largest democracy, one of the thriving democracy, and we are also a mother of democracy. So keeping all that in mind, UGC has taken up this project in a big way to, to celebrate the democratic traditions of India. We've all gathered here. So on behalf of the NSS units of the IIS deemed to be university and the Department of History, I welcome Professor Priyatosh Sharma very much to this university. Sir, ये सर मुझको दिख नहीं रहा है, ये बिल्कुल आगे आ रहा है, देख पा रहे हो? Okay, so today's topic is community participation in state formation, a case study of Punjab from 600 to 1600 BC, 1600 AD in fact. Our guest speaker is from the Department of History from the Punjab University, and to have a further more detail about him, I have one of our students from the department who will introduce sir. So we welcome you, sir, but we have a formal introduction for all the speakers here. So thank you, ma'am. Thanks you. Thank you. Good morning, everyone. Today we have Honorable Dr. Paritosh Sharma Sir, Associate Professor and Chairperson of Department of History, Punjab University, Chandigarh, to enlighten us about the community participation in state formation on the occasion of Constitution Day. Now, I want to formally introduce him so that I'll let you know about his some qualifications and about his areas of interest. He has done his PhD from the Department of History, Punjab University, Chandigarh. The title of his doctoral thesis is Ships, Merchants and Cargoes, a Study of India's Maritime Trade. His areas of interest are medieval India, polity, epic traditions, maritime studies, and popular cultures. His interdisciplinary subjects are women's studies, biographies, and human rights. He has many academic distinctions. He has edited many books also. He has reviewed many books, and he has published many research papers in journals and proceedings. He has his contribution towards content development and syllabus in the subject of history, like content, like in subject matter of history and culture of Punjab, history and for BCom semester 1, etc. Now, I'll request Dr. Paritosh Sharma Sir to formally start his lecture. Thank you, sir. Thank you, Dhirendra. And so let us, with a very loud round of applause, welcome sir. And sir will take over for the session now. So can we have him on the big screen, sir? So we will, after this lecture, we will have an interactive session with you. So students, if you want to ask some questions with him during the lecture, you can just note down and you can ask. Thank you. So thanks for letting me in and having a discussion, having this interactive session with all you all. And first of all, I should all be congratulating you on this Constitution Day. And as I have been told that you all are celebrating. So, and being a part of this celebration, which has given strength to our country, which has given more energy to or more vigor to our country. So it is always a pleasure. So when I was thinking, and as you all are from here, I'm noticing NSS is also here, and students of history are here. So with the belief that all of you are researchers, students, and are interested, what I was thinking to discuss with you, because nowadays when this
whole project of ICHR came, Bharat Loktantra ki Janani. As a student, you all must know, आप सबको ये पता होना चाहिए कि there was some discussions here and there's debates also. So, to look at Bharat, to look at India as a cradle, as a journey of democracy, it has both sides. And there is a discussion, and discussions are always important because this country has evolved. Our culture has already always evolved through Samvad. So with Samvad, we kept moving forward. And in the same project, this whole idea ke saath, what the UGC thought, let us, all those content writers who are arguing on one side, and let us come together and discuss with the students, with the other scholars, what are our takes, how we are planning, how we are thinking, and what are our postulates. So agar as a student aap sab isme interested hain, to I should give you, I was thinking let us share with you all some PPTs, but फिर मुझे लगा कि नहीं, I would be raising more questions, and then these questions need some serious answers. Some of these answers, basically what I'm going to discuss with you all, it is the overview, how we are planning, how we are seeing the whole thing. And as a student, many of you would agree, some of you may not agree, but that is the beauty. So उसके साथ सबसे पहला सवाल, आप अगर social sciences से हैं, humanities से हैं, the biggest question is, was India a democracy? That is how the things are going on in newspapers. But now there are two words. आपको इससे पहले बढ़ने से पहले, there is democracy, there is loktantra. अब democracy and loktantra, how these two words have evolved. आपको इससे पहले आपको बताने के लिए, you just understand one main thing. इससे पहले हम आगे बढ़े, देखिए, हर every word which is being translated from English to Hindi, from West to the Indian society, it never conveyed the same meaning. For example, I give you two examples. जब हम बात करते हैं secularism की, secularism as it has been evolved in Europe, Roman, post-Roman, medieval, Christian world, then Renaissance, Reformation, French Revolution, these all played a significant part in creating the ethos of secularism. So if you are English educated, if you are in Western world, the word secularism is told to you, it has its own meaning and connotations. आपको जरा समझाना नहीं पड़ता कि क्या है इसका मतलब, you already understand the meaning. लेकिन when you translate it into Indian context, the word became dharam nirpeksha. Now dharam, which was an important part in our society, which is an important part of our ethos, which is an important part through which we understand the world, and we said dharam nirpeksha. The moment we use these two words, English audience which was able to understand secularism, they were at ease because they never went deep into the connotation of dharam nirpeksha. But the masses of India who lived through dharma, जिनके लिए पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, राज्य धर्म, every dharma, they were always within the dharma. They got confused. How can as an Indian citizen, how as a normal person who is living his life in India, in this holy land, मुझे अगर बताया जाए कि मुझे धर्म से निरपेक्ष रहना है, तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है ना. So the same way, when we say democracy, इसके जो आयाम हैं, जो इसकी connotations हैं, they would change from region to region, from the cultural constructs from one region to another region. जब 1940s के बाद, ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने हैं. बहुत सारे आधी दुनिया में जब डेमोक्रेसी आती है और एशिया में भी आती है, most of the countries which underwent that process, they are facing the crisis. They failed. Half of the Africa, आप इंडिया के आसपास देखिए, China 1911, उसके बाद पाकिस्तान, you can see Sri Lanka, the crisis, you can see Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, everything. So democracy local cultural context में काम करती है. अगर आपके पास उसकी मौजूदगी नहीं है, you cannot just enforce it, and it has been totally a failed experiment if that culture, that country, that region did not understand the ethos of people's participation. So democracy, जिसका मतलब बनता है, हम कहा जाता है demo people, kratos rule, the rule of the people. But in our word, when we use the word lok,
व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लोग? कभी आपने सोचा जब हम बात करते हैं लोग, ये लोग हैं, उन लोगों का मतलब क्या है? उसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं? आपने कई बार सुना होगा तीनों लोग हमारे ठीक हो गए, त्रिलोकवासी। हम लोग को सिर्फ आदमी और लोगों से नहीं जोड़ते। हमारे कल्चर में, हमारे टेक्स्ट में, हमारे एथॉस में लोक दो तरीके से काम करता है। इट हैज गॉट थियोलॉजिकल मीनिंग्स, इट इज फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। जैसे भूलोक, स्वर्गलोक, किस लोक के वासी हो? हम बोलते हैं ना ये स्वर्ग लोक के वासी हैं, ये भूलोक के वासी हैं, ये नरक उसके भी वासी। वी यूज वी हैव लोक विच इज बोथ स्पेशल यानी कि रीजन जहां पे एरिया होगा, दूसरा उसकी अपने एथॉस। इट विल डिसाइड कि ये स्वर्ग लोक है, भूलोक है या पताल लोक है। लोक इन इटसेल्फ इट हैज फिलोसॉफिकल कनोटेशन along with the regional connotations. डेमोक्रेसी में it is लोक, people. In our context, लोक has more strong philosophical basis. इसीलिए अगर जब हम ये बात करते हैं कि we are लोकतंत्र, then it is not simply the people. We never believed that the majority would solve the problems. We required strong philosophical justifications. इसलिए तो हम संवाद में जाते हैं। इसलिए हमारे शुरुआत से एंशिएंट टाइम से we have Upanishads questioning Veds, Mahatma Buddha questioning other theories, then Ajivikas, then Charvaks, we have Jains, we have various ideas which came together and which continued to interact, debate, discuss. इस बेस के साथ जब आपके दिमाग में ये बात आ जाती है, फिर आपको एक कहानी, हम वो सोसाइटी हैं जहां पे ये कहा गया कि यू शुड लर्न टू लिसन। श्रुति, सुनिए, सुनिए यानी आप उसको, जब आप कुछ सुनते हैं, आप कहीं कीर्तन में जाते हैं या कहीं कोई पाठ करते हैं, व्हाट वी आर सेइंग, जस्ट बी अ गुड लिसनर, फर्स्ट लर्न टू लिसन देन स्पीक। हम ये दो आइडियाज में काम करते हैं कि इट इज नॉट सिंपली वर्ड्स। हमारी पूरी फिलॉसफी में वर्ड्स अपने आप में मैटर नहीं करते जब तक सही तरीके से वो बताए ना जाए। दैट इज व्हाई वी ऑल रिक्वायर्ड टीचर्स, दैट इज व्हाई वी ऑल रिक्वायर्ड गुरुज। और हमारी सोसाइटी में दो तरीके से नॉलेज गेन की जाती थी, वन इज थ्रू वर्ड्स, बट हु वुड टेल यू द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स? देन इट वुड बी philosophers, the scholars, the higher ones who understand the complexities. इसके साथ जब वो कहानियां चलती हैं, अब आपके सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आती है जो आपने बहुत बार सुनी एज अ स्टूडेंट ऑफ, आप कई बार सुनते हैं, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री दैट स्टोरी हैज मीनिंग। कहा जाता है, जो आपने कई बार सुना होगा, कि रामायण में एक धोबी ने जब क्वेश्चन किया सीता को, तो राम, who was a ruler of that time, he was forced to send सीता on exile. अब इसके कई डिस्कशंस हैं, was he a good husband, was he a good, बहुत क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम लगातार पूछते हैं। लेकिन एज अ राजा, एज अ रूलर, who became more powerful? The question is for us when we talk about लोकतंत्र, ज्यादा वैल्यू किसकी रही, राजा राम की कि उस धोबी की जिसने सवाल पूछा? Who followed whom? Who agreed to whose doubts? इसमें राजा राम, he knew as a husband he was doing something bad, but as a ruler he was entitled, he was obliged as a ruler, क्योंकि राज धर्म में काम कर रहे थे। आप सोचेंगे कि राजा छोड़ देता, वो राजा छोड़ के चले जाते साथ में। देन राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है, ही इज अ फादर टू हिज पीपल, वो अपने प्रजा को एकदम से खाली नहीं छोड़ सकता, वो अपने परिवार को छोड़ सकता है, वो अपने बच्चों को, पत्नी को, कि ये उसका धर्म है। He is responsible to more people than his mere family. So he was obliged because he was following his Raja Dharma. राजा का धर्म प्रजा को सुनना, प्रजा को के डाउट्स को क्लियर करना, and that is how our stories are moving forward. एक और स्टोरी आती है, it is not simply rajas. Questions are being raised even to gods. कृष्ण जो महाभारत में जो पार्टिसिपेट करते हैं, what जो कौरवों की माँ है वो क्या कहती है कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू मेरा पूरी फैमिली तबाह हुई है, आई जस्ट कर्स यू कि तुम्हारी फैमिली भी तबाह हो जाएगी। इनके हुआ कि नहीं हुआ इसमें अब मत चाहिए, बट आई एम सेइंग दीज स्टोरीज, दीज कैनोटेशंस, दीज एथोस आर देयर।
ये सवाल अपने आप में आने, ये कहानियां अपने आप उन किताबों में आनी, ये बताती हैं कि ह्यूमंस कुड कर्स एंड क्वेश्चंस गॉड देमसेल्व्स बिकॉज दे कंसिडर्ड, उन्होंने कुछ गलत किया है, एंड गॉड्स वर आंसरेबल टू देयर डिवोटीज। यानी भगवान हमारा ऐसे नहीं थे हमारे एथोस में कि जो मर्जी हमसे करवाते रहे, हम उनको सवाल पूछ देते थे, कर्स कर देते थे, वो कर सकते थे। सो दैट इज हाउ वी इवॉल्व इन द, ये कहानियां जिस जब हम टॉपिक में आगे चलते हैं, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वर देयर। वी हैव टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री थ्रू आवर ट्रेडिशंस। हमें इतिहास समझना है। हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ द रूलर्स। इतिहास द वे वी सी आवरसेल्फ, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे है हिस्ट्री को देखने की। तो इस तरह से हमारे पास कहानियां आती हैं जहां पे इवन गॉड्स वर क्वेश्चनड। देन वी हैव अनदर स्टोरी। आदि शंकर जा रहे थे, उनको जो शमशान में काम करते हैं उनके सामने आए चंडाल, तो उन्होंने उनसे सामने खड़े, तो किसी ने कहा कि आप सामने से हटिए, आप शंकराचार्य के सामने नहीं खड़े हो सकते। देन व्हाट चंडाल डिड, ही आस्क्ड आदिशंकर कि तुम मानते हो अद्वैत, तुम किससे फर्क कर रहे हो, मुझसे, अपने आप से, अपने शिव से, किससे? अगर तुम में मैं और अपने में, तुम में, तुझ में और मुझ में फर्क दिख रहा है, तो तुम्हारा अद्वैत कैसा? अद्वैत मीन्स यू आर सीइंग वन। पर तुम्हें मुझ में चंडाल दिख रहा है और खुद में तुझे ब्राह्मण दिख रहा है, तो फिर तेरा अद्वैत कैसा? दैट वाज अ क्वेश्चन ही आस्क्ड, एंड आदि शंकराचार्य bowed before him and said, you opened my eyes. इन 3 क्वेश्चंस को लेके वी मूव फॉरवर्ड। इन सवालों को लेके हमने सोचा कि लेट अस सी भारत में लोकतंत्र कैसे काम करता है। तो दैट वाज अ प्रोजेक्ट थ्रू विच वी मूव फॉरवर्ड। और इसी के अगले जो हमारे सवाल हैं वो आपसे मैं बात करना चाहूंगा। दीज आर द क्वेश्चंस। अब मेरा जो अपना फील्ड था इस काम में, इट वाज बेसिकली पंजाब। व्हेन आई एम सेइंग पंजाब, इट इज नॉट द मॉडर्न पंजाब। देखिए आज की हिस्ट्री की प्रॉब्लम ये है, वी आर so strongly linked and thinking within the boundaries, political boundaries of the states nowadays, कि पंजाब में जब हम पढ़ते हैं तो we do not study हरियाणा, when we study Haryana we don't move to Rajasthan, when we move to Rajasthan we don't study Himachal। हम इस पूरे रीजन को एज अ वन यूनिट नहीं देखते जो कि हिस्टोरिकली था। अब जब हम वापस जाते हैं तो इसको हम डिफाइन कैसे करें? तो फॉर मी, फ्रॉम रिवर सिंध से लेके यमुना का इलाका जिसको बार बार कहा जाता है, वो पंजाब का इलाका है। दैट इज हाउ पंजाब इवॉल्व कल्चरली। इसके एथॉस ऐसे काम करते थे, क्योंकि पार्टीशंस का कई बार हुआ। इट समटाइम इट बिकेम पार्ट ऑफ द पर्शिया, देन इट बिकेम द पार्ट ऑफ द इस्लामिक स्टेट, देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द अफगान्स, देन सम ऑफ इट बिकेम अ पार्ट ऑफ, अब जो आधा पार्ट पाकिस्तान चला गया, उसके बाद फिर पार्टीशन हुआ, आधा हिमाचल बन गया, हरियाणा बन गया। सो पॉलिटिकल बाउंड्रीज वर नेवर स्टेबल, बट कल्चरल सोशियोलॉजिकल एथॉस, जो लिटरेरी ट्रेडिशंस थे, वो चलते रहे। जलंधर, वो जो जलंधर नाथ हैं, जो दूसरे नाथ हैं सारे, जब हम नाथ गोरखनाथ हैं, वो तो सब जगह माने जाते हैं, उनकी वैल्यू तो वही काम कर रही है। गुग्गा वीर, समटाइम दे ही वुड बी एड्रेस्ड एज गुग्गा वीर, समटाइम गुग्गा पीर, उनकी तो हर जगह है। शीतला, ये जो ट्रेडिशंस लोकल हैं वो तो एक रीजन में दिखते हैं ना आपको, वो तो बाउंड्रीज के साथ नहीं रुके, वो तो चलते रहते हैं। और बालाजी हो गए, सब ये ट्रेडिशंस हमारे लिए इतने मैटर करते थे कि आई थॉट लेट अस गो बैक एंड सी दिस रीजन थ्रू दीज प्रिज्म्स। तो इसके साथ अब हमारे पास सवाल ये आता है, आपका, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अगर और सोच रहे हैं, तो आपका सवाल ये होगा कि ठीक है, लेकिन हमारा टूल क्या होगा? क्या हम सिंपल बातें करेंगे कि जी यहाँ पे सब कुछ था, हम ऐसा था, या हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं? क्या हमारे पास मेथोडोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है? क्या हम मेथोडोलॉजिकली अपने आप को ये साबित कर सकते हैं कि इट वाज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? जब राम धोबी को सुनता है तो वो राम एक एक्सेप्शन नहीं है, दैट वाज अ ट्रेडिशन इन दिस पार्ट। और अगर लोगों को नहीं सुना जाए, देन दे वर नॉट पैसिव स्पीकर्स। पैसिव, याद रखिएगा, इंडिया के लोग कभी भी कोई भी कम्युनिटी पैसिव स्पीकर नहीं थे। वी वर ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज फाइटिंग, ऑलवेज डिबेटिंग, ऑलवेज टेलिंग द स्टेट, टेलिंग द रूलर्स कि तुम्हें क्या करना है, और अगर नहीं करोगे तो हम लड़ने को भी तैयार थे।
वी वर नॉट वेरी पीसफुल सोसाइटी, जैसे कि अंग्रेजों ने हमें बता दिया, वैसा हम नहीं थे। बट फॉर अस द राइटियस वॉर वॉज कॉल्ड धर्म की लड़ाई। इट वॉज ऑलवेज धर्म युद्ध। वी वर नॉट फाइटिंग simply for lands. We were not fighting simply to capture people. We were not fighting just to capture people so that they can be sold in the markets. हमारे लिए लड़ाई होती थी higher traditions के लिए. It should have higher values. अगर वो values नहीं है, then our war was never celebrated. हम जितनी भी इतिहास में लड़ाइयां पढ़ते हैं, हम उसी लड़ाइयां, उसी हीरोज को मानते हैं जो moral values पे लड़ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, हम उनको हीरो मानते हैं। हम चाहे वो जीते चाहे हारे, वो अलग बात है, बट वी नो कि वो फाइनली जीतेंगे बिकॉज दे वुड सस्टेन, दे वुड इंड्योर, देयर आइडियाज वुड इंड्योर। वो आइडियाज आज आप 2500 साल बाद, 3000 साल बाद, 5000 साल बाद भी आप उनकी बात करेंगे, दूसरे जो उस टाइम आपको टेम्परेरी जीते होंगे, उनकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। टाइम विल चेंज, हिस्ट्री विल जस्ट फॉरगेट देम with passage of time, or they would be taken only as the villains. तो इसके लिए 3 हिस्से थे जिसमें हम इस एरिया को समझ सकते हैं। हमारे पास 3 तरह के लोग हैं। 3 तरह के मतलब 3 लोग, जैसे कि त्रिलोक बनाए गए, वैसे थॉट के लेट अस सी कैसे 3 तरह के लोगों को हम देख सकते हैं। तो पहला जो था उसमें वो था शहर, शहर और उसके लोग। अब शहर आप पढ़ते हैं, आपने कई बार शहर पढ़े होंगे। नॉर्मली हम सिटीज कैसे पढ़ते हैं? हम सिटीज को पढ़ते हैं इकोनॉमिकली। अनफॉर्चुनेटली वी आर बीइंग टोल्ड एज इफ cities do not have their own cultural traditions. हमारी पोइट्री, हमारी राइटिंग्स, हमारे धार्मिक स्ट्रक्चर्स, हमारी मोनास्ट्रीज, हमारे मंदिर, उनके आर्किटेक्चर, सब कुछ शहरों में तैयार हुआ है। शहर, cities were the repository of the whole traditions. वो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो लैब्स हैं जहां पे काम होता है और वो मूव करता है। तो हमारे शहरों को हमने सिर्फ पढ़ा व्यापारियों की जगह, जहां पर इतनी मंडी थी, इतना सामान आता था, इतना सामान जाता था। समटाइम वी वुड सी सिटीज जहां पे लोगों को लेके की कल्चरल प्रैक्टिसेस और उनके मेले या क्या थे। पर क्या शहर और उसके लोग पैसिव थे? वर दे ओनली इन्वॉल्व्ड इंटरेस्टेड इन ट्रेड? हमारे सोर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इस रीजन में खास करके नहीं है। जब ह्यूम सिंह पहली बार पंजाब से निकलता है, वो ऑब्जर्व करता है, व्हाट ही सेज कि यहाँ के लोग, यहाँ की सिटीज, दे आर like semi-autonomous entities. That is what he is seeing. He is saying every city is religious. People are very religious. They are very good. They are good natured. But for us, the important thing is cities are autonomous. They were enjoying autonomy. और ये autonomy इतनी मैटर करती है, वो कहता है आगे जाके जब हम जाते हैं, जब हम अगले सोर्स में आते हैं चचनामा में, तो चचनामा में जब मोहम्मद बिन कासिम he conquered देबल, देबल को जीतता है, तो राजा दाहिर क्या कहता है? तुम ज्यादा खुश मत हो, जिस इलाके को तुमने जीता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ दैट टाइम। जिस पोर्ट को तुमने जीता है, ये यहाँ पे सेना तो थी ही नहीं, इट्स अ पोर्ट ऑफ द मर्चेंट्स, इट्स अ पोर्ट ऑफ द पीपल। आई हैव नॉट स्टेशन्ड आर्मी इन दिस प्लेस। वो कहता है कि मैंने यहाँ आर्मी तो रखी ही नहीं है, तो इसलिए खुश मत हो। जब तू अंदर की तरफ बढ़ेगा, then you will face the army, then my army would face you and tell you how strong I am. अब आपके लिए एक सवाल ये हो सकता है कि इतनी अमीर जगह जहां से ट्रेड हो रहा है, वहां पे आर्मी क्यों नहीं है? That is how autonomy was ensured. हमारे टाउन्स, अर्बन सेंटर्स हमेशा इसी तरह से काम करते थे। They would be given, वहां पे जो लोकल सेक्शंस होते थे, मोहल्लास होते थे, they would have their own लीडर्स जो आपस में चीजों को रिजॉल्व करेंगे। इवन मुगलों के टाइम में भी शहरों में बड़ी फौज नहीं रखी जाती थी। पीपल जो ट्रेडर्स हैं, काजी हैं, उन सबको ये कहा जाता था दे शुड कीप रिजॉल्विंग द इश्यूज विद इन देमसेल्व्स। आज भी मोहल्ले आपने सुने होंगे, तो मोहल्लास जो होते हैं उस तरह से कॉन्सेप्ट सिटीज के इवॉल्व होते थे। अब हम जब आगे पढ़ते हैं चचनामा, मोहम्मद बिन कासिम जगह जगह शहरों से जाके बात कर रहे हैं। Sometimes he would plunder the city,
but cities on their own were opening the negotiation channels. ये इंटरेस्टिंग है, राजा दाहिर से नहीं पूछा जाता, लेकिन शहर अपने आप में उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं, उसके साथ ट्रीटीज कर रहे हैं। अब हमारा ये सवाल होता, हमारा हिस्टोरिकल सवाल ये था कि ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाउ कैन सिटीज ऑन देयर ओन आर डूइंग दिस? वाज इट समथिंग न्यू? तो हमें राजा दाहिर, जब हम चचनामा पीछे की तरफ जाते हैं, हमें पता लगता है व्हेन दाहिर एंड चच वर गेटिंग वेरी पावरफुल, दीज रूलर्स ऑफ दिस सिटी, इसमें कई रूलर्स आते हैं, उन्होंने लेटर सेंड किए कश्मीर के राजा को कि देखिए यहाँ पे कभी भी एक राजा दूसरे राजा को इस तरह से नहीं जीतता शहरों को। वी ऑलवेज लिव टुगेदर, वी हैड अलायंसेस, नॉट द कॉन्क्वेस्ट द वे दिस पर्सन चच इज डूइंग, सो प्लीज कम डाउन एंड इंटरवीन। ये हमें इस एरिया के पॉलिटिकल डिबेट्स में मिलता है, जहां पे आसपास के जो, अगर आप राजस्थान को भी स्टडी कर रहे हैं, यू विल सी लोकल जो यूनिट्स हैं, वो जो मेन राजा है या राणा है, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड महाराणा, क्योंकि राणा भी तो है ना फिर। तो राणाज हैं, राजाज हैं, और एक महाराजा है उसके ऊपर जो उनके अलायंसेस को लेता है, बट वो उनको पूरी तरह से कॉन्कर नहीं करता है। ये एक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन सिटीज क्या कर रही है हमें, ये तो राजाओं की बात हुई, लेकिन शहर कैसे काम करते हैं? देखिए, जब हम इसको आगे बढ़ते हैं, जब मुल्तान को जीत लेता है कारामातियास या इस्लामिक स्टेट जीत लेती है, देयर इज अ वेरी फेमस टेंपल, सन टेंपल। दिस टेंपल वाज नॉट डिस्ट्रॉयड अप टू 11th सेंचुरी, यानी 10th सेंचुरी, जब तक इस्लामिक स्टेट को ये नहीं पता लग गया दे हैड सफिशिएंट नंबर ऑफ मुस्लिम्स एंड सूफीज in this region, without adhering to the notions of the people. जब तक क्राउड, जब तक लोग, जब तक वो वहां के बाशिंदे आपको एक्सेप्ट नहीं करते, स्टेट, इस्लामिक स्टेट, डिस्पाइट इट्स बीइंग सो मच क्रुएल्टी, वो उस जगह को तोड़ नहीं सकी जो हिंदुओं के लिए पवित्र थी, वहां के लोगों के लिए। ओनली व्हेन पीपल शिफ्टेड टू इस्लाम, ओनली व्हेन देयर वाज अ माइग्रेशन, जब वो उस वहां पे ज्यादा लोग हो गए, तो ओनली देन दे फेल्ट गुड इनफ, थोड़ा सा शांत इनफ टू कैप्चर और डिस्ट्रॉय दैट प्लेस। और उसके बाद हमें दिखता है वो एरिया बहुत तेजी से सूफीज्म के साथ चलता है, वो कन्वर्जन्स में और उस इमिग्रेशन से उस एरिया को चेंज किया जाता है, पर लोकल एलिमेंट स्टिल रिमेन इंपॉर्टेंट। जो कन्वर्जन में लोकल लोग हैं उनको इग्नोर नहीं किया जाता, दे वर गिवन ऑल द पावरफुल पोजीशंस। क्यों दी जाती हैं? जबकि बर्नी ये शिकायत करता है 14th सेंचुरी में कि आप यहाँ के लोगों को मत दो, जो यहाँ हिंदुस्तान से कन्वर्ट मुस्लिम है उनको भी मत दो। हायर पोजीशन शुड ओनली बी गिवन टू द तुर्क्स, नॉट टू द इंडियन मुस्लिम्स। देयर आर डिबेट्स, याद रखिएगा कि जब बाहर से लोग आ रहे हैं, दे वर नॉट हैप्पी व्हेन converted people of this region were given spaces. So वो डिबेट करते हैं। आगे देखिए शहर कैसे काम करते हैं। 12 जब कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसके सामने नसीरुद्दीन कवाचा है, मुल्तान का सुल्तान। द बहाउद्दीन जकरिया, द सूफी शेख ऑफ मुल्तान, वो एक काजी को भेजता है टू सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश के पास भेजता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। उससे पूछा जाता है उस काजी से कि तुम्हें किसने भेजा? He said, I was being sent by Sheikh Bahauddin Zakaria. And when Sheikh Bahauddin Zakaria was asked कि तुमने भेजा है, he said to the Sultan, yes, I have sent this Qazi to Sultan Iltutmish कि तुम आओ, मुल्तान पे कब्जा कर लो, हम दरवाजे खोल देंगे और तुम यहाँ पे इसको कब्जा कर लो। Then Kawacha asked, तुमने ये क्यों किया? The reply was, because you are not powerful enough to protect us. तुम हमें मंगोलों से नहीं बचा सकते, इसलिए the people of Multan have decided to switch their loyalty. Cities are deciding now. Cities are deciding. Just understand, cities are deciding. Again, जब मंगोल एक बार हमला करते हैं, city on its own Multan open up its door and start negotiating. वो पैसे मांगते हैं तो वो उनको पैसा देते हैं बहादुर जकरिया कि आप हमारे इलाके को मत लूटिए। अगेन, अब शहरों की ताकत देखिए कैसे शहर कर रहा है। मैं 3 शहरों की बात करूंगा, मुल्तान पहले कर रहा हूं। मुल्तान जब सुरावर्दी सेंट हैं और जो हमारे
बलबन का बेटा है अपने टाइम में ताकतवर, उस बेटे he used to drink too much and once when he was drunk उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, who was from the relation of, वो अपने इल्तुतमिश के खानदान से थी। तो अब जब तलाक दे दिया तो डिबेट हुई, ये कहानी है जो रिकॉर्डेड है, दैट्स अ फैक्ट। जब रिकॉर्ड दे दिया, तलाक दे दिया, तो अब सवाल पूछा गया, एंड जब उसको होश आया तो उसने कहा आई वांट टू मैरी हर अगेन। देन ही वाज टोल्ड कि एज यू हैव गिवन डिवोर्स, नाउ यू हैव टू मैरी हर समवन एल्स। जब वो वहां से तलाक लेगी देन यू कैन मैरी हर बैक। तो जो सुरावर्दी सेंट थे उनसे उनकी शादी की करवाई गई कि अब आप इनको तलाक दे देंगे और वो वापस चले जाएगी अपने पति के पास। जो उनकी पत्नी थी, शी रिक्वेस्टेड द सेंट कि मुझे आप तलाक मत दीजिए, I am not happy with him. He is drunkard, aggressive, very violent. तो इसलिए वो कहती है कि I want to be a Sufi and I want to serve in this this khanka. Please do not let me go. अब just understand, one of the most powerful person of his time, उसकी wife और सामने एक इंसान सूफी मुल्तान का, he refused to divorce the wife of that Prince Muhammad. एंड उससे इतनी एनिमिटी बढ़ जाती है कि वो अपने वो बहुत ताकतवर प्रिंस है, who is fighting against he was mustering the one of the strongest army of his time. लेकिन सूफी शेख उसकी बात मानने से मना कर देता है और मुल्तान के लोग उसके साथ खड़े। He dare not do anything to that Sufi because the city of Multan was standing with him. उसको वो कुछ कर ही नहीं पाया। He was very angry. He wanted to kill the sheikh, but he could not because people were there with him. जब आप इन लोगों को देखते हैं जिनको आप नॉर्मली हिस्ट्री में नहीं देखते, हमें लगता है they were passive. Now you can see, जब आपको, जिसको हम इस तरह से समझते हैं कि सुल्तान की या प्रिंस की या किसी राजा की बड़ा कंपैशन है, उसके लिए उसने फैसला कर दिया, we have to just understand it was not simply the compassion of the ruler, it is the power of the people of that city. जब रजिया शाह तुर्का से दुखी होती है तो वो क्या करती है दिल्ली में? she approached अपने पैलेट पे जाती जहां मस्जिद के पास, and she called upon the people of Delhi कि protect me, my life is in danger. अगर तुमने इल्तुतमिश को तुम अपना सुल्तान मानते थे, I am his daughter, protect me. And what the crowd of Delhi did, they raised a banner of revolt. आपको लगातार शहरों में ये रिवोल्ट्स दिखते रहेंगे। लाहौर में आपको दिखेगा पार्टीज जो हैं अप टू 16, जब हम अकबर को भी पढ़ते हैं, we would come across दूल्हा पट्टी, मतलब पार्टीज है ना, they are fighting और they are so strong fighters, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कल्चर में गाने उनपे गाए जा रहे हैं। Even when they were persecuted, they were protected, sheltered by the cities themselves. जब आप आगे जाते हैं लाहौर को, अभी मैं लाहौर, अब मुल्तान से मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाहौर जब इमर्ज होता है, जब उसको गजनविड्स सबसे पहले अपने अंडर इमर्ज करवाते हैं, all the important officers of that area were the local people. जो सलार्स बनाए जाते हैं गजनविड्स के, सारे जो वहां पे सलार्स हैं वो लोकल्स हैं, वो बाहर से नहीं है। हमें वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि they were very compassionate, that is why they were doing this. इस चीज में मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसको सोचें कि सुल्तान बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि that is how we think in history normally. So it was not the Sultan's benevolence, it is the power of the people. Same goes with Lahore, then it goes with Delhi. Delhi में जब अलाउद्दीन खलजी अपने फादर इन लॉ और पुराने सुल्तान जलालुद्दीन फूज खलजी को मारता है, he had to face the hostility. Same thing happened with Ghiyasuddin Tughlaq. The same thing happened with various other people. इतनी एक और आपको उसको बताने के लिए, so that you can, okay, facts I will give you, लेकिन आपको कहानी से अच्छा समझ आएगा. There is an incident, you can understand how helpless ruler can be before the people. Nizamuddin Auliya was having a troubled relation with the Sultan Ghiyasuddin Tughlaq. निजामुद्दीन औलिया की, शेख निजामुद्दीन औलिया की सुल्तान से नहीं बनती थी. अब हुआ क्या, सुल्तान ने गुस्से में आके
जो समा थी वो बैन कर दी, वो बंद कर दी। जब उसने समा बंद की तो बंद हो गया सारा। लेकिन अब समा, व्हाट इज समा? इट्स कवाली। एक थे शेख समानी, उनकी उनकी रेफरेंस है हमारे पास, शेख समानी। उन्होंने एक बार कवाल जब उनकी गली से जा रहा था तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि अंदर कमरे में आओ और मुझे कवाली सुनाओ। उसने कहा कवाल ने कि देखिए, अगर मैंने कवाली सुनाई तो मुझे तो सुल्तान मार देगा, वो तो मना है। तो उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, तू छुप छुप के मेरे कान में बता दे, तू कान में सुनाना और मैं सुन लूंगा। जब उसने कवाली सुनानी शुरू की तो जो शेख थे वो ट्रांस में चले गए। अब वो ट्रांस में चले गए तो कवाल भी ट्रांस में चला गया। दोनों ही ऊंची ऊंची गाने लग पड़े, वो गाने लग पड़े, वो नाचने लग पड़े। एंड दे केम आउट ऑन द रोड। उनको देख के जो गली मोहल्ले के लोग थे वो भी नाचने लग पड़े। एंड व्हाट नाउ, इट इज अ बैन, इट वाज प्रोहिबिटेड। जस्ट रिमेंबर, देयर वाज, द रिकॉर्ड सेज, वहां पे एक जलसा बन गया। सारा जलसा नाचता गाता समा करता हुआ कहां चला? दे ऑल स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स द फोर्ट, द प्लेस ऑफ द सुल्तान। सुल्तान गियासुद्दीन के किले की तरफ चल पड़े सारे। एंड व्हेन सुल्तान गियासुद्दीन he saw, he got very angry। उसने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये शेख समानी है और ये लोग चले हुए इनके साथ, अब क्या करना है? यू नो व्हाट ही डिड? उसको अपना जो सारा कॉम्प्लेक्स है, अपना कासल है, वो खोलना पड़ गया। 3 दिन तक शेख समानी वहीं रहे, वहां चलता रहा ये समा। एंड 3 दिन बाद शेख ने कहा कि अब ठीक है, अब मैं हो गया, अब मैं जा रहा हूं। सुल्तान ने उनको ऑफर किया कि आई वांट टू गिव यू सम मनी। ही सेड आई एम नॉट आफ्टर योर मनी, आई एम गोइंग। एंड ही वेंट बैक। 3 दिन तक वो लोग उसके सुल्तान के सामने बैठ के नाचते रहे, जो कि प्रोहिबिटेड था। दैट इज हाउ दिस एरिया, दिस पीपल ऑफ दिस एरिया वर एक्टिंग। ये उनकी ताकत थी। ये जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते। सो व्हाट आई एम प्रपोजिंग इन द फर्स्ट सेक्शन इज, cities were the nerve centers of लोकतंत्र। They were not just the places where you could go and trade और ये सब कुछ कर सकते हैं। People were always active, they were always looking, they were always participating। Political genre में वो enter करते थे। And sometime when they when they felt that Sultan or the ruler was not powerful enough, they had their own recourses। There are the second recourse, that is the second point which I want to discuss। वो है दूसरा recourse क्या था? Religion, धर्म। We have to go and see धर्म। हमारा धर्म regressive धर्म नहीं था। I am not talking about the sects, I am not talking about the panths, I am not talking about the scriptures, I am talking about the connotation of धर्म। धर्म क्या था? हमारा धर्म लोगों को empower कर सकता था। That is why धर्म must be understood, studied in detail। हमें उन धार्मिक जगहों को जो आपके आसपास लोकेटेड है, इस रीजन में है, उनको हम आराम से डिसमिस नहीं कर सकते, because they move people। In Indian society, धार्मिक places, धर्म could move people। They would be willing to sacrifice their life to uphold the धर्म। So इस धर्म को जब हम देखते हैं इस फेज में वो कैसे काम कर रहा है। अब now you have a new religion, Islam entered in Indian subcontinent, and Islam in its phase at the upper level undertook jihad। And now if you were a person of that time, just understand, इससे पहले इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था। There was systematic religious persecution supported by the state। सुल्तानों ने किया कि नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन theoretically the idea of jihad was theoretical। ये theoretically तो है ना, theology में तो है ना, उसके मतलब क्या है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक आइडिया एक आया जिससे जो एक ऑलरेडी सिस्टम यहाँ का था वो फ्लक्स में चला गया। There was bloodshed, there was killing, no cities were destroyed, we have enough evidence for that। लेकिन जो जेनेसिस ऑफ डिबेट और डिस्कशन और रेजिस्टेंस है वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। इवन व्हेन सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, पीपल खास करके रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, दे मूव्ड टू द रूरल लैंडस्केप्स। हमें एक नया एलिमेंट दिखता है अब, जिसको अगर आप राजस्थान से हैं, अगर आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, तो आप इसको ज्यादा समझ सकते हैं। वो है जोगी और नाथ। जोगी और नाथों का अपना एमरजेंस। They were speaking in the local language।
अगर वो लोकल लैंग्वेज में आम लोगों की भाषा में बात करते हैं, अगर वो कहते हैं कि ओ मुल्ला पंडित तुझे तेरा धर्म नहीं पता, ओ राजा तू तो लालचियों का राजा है, हम जो स्पिरिचुअल है, जो ज्ञानी है, उनको मार्ग दिखाते हैं, तू घमंडी है, हम क्षमा सिखाते हैं। जो वो ऐसी बातें करते हैं, व्हेन वी हैव पड़तरी, व्हेन वी हैव गोरखनाथ, व्हेन वी हैव जलंधरनाथ, व्हेन वी हैव पचिंद्रनाथ एंड वेरियस डेरास, आपको इन एरियाज में बहुत सारे डेरेस मिलते हैं। समटाइम इट इज पागलपंथी, योगी ऑफ जकबर्ड, कई तरह के 12th सेंचुरी तक आते आते आपके पास स्ट्रक्चर्स में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उससे पहले की, ये इमर्ज कैसे हुआ। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द रूरल लैंडस्केप, एग्रीकल्चर प्रमोशन, द डिमांड, द चेंजेस ऑफ अर्ली मिडीवल, इट एम्पावर द विलेजेस। अगर आपको शहर बनाने हैं तो आपको गांव साथ जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि गांव प्रोवाइड्स यू फूड, नरिशमेंट। अगर आपके पास गांव नहीं है तो फिर खाना कहां से खाओ? इसीलिए द मोर कनेक्शन गांव हैड विद सिटी, द मोर डायलॉग विलेजेस वुड नाउ इंश्योर। इसके लिए गांव की अपनी लैंग्वेज है, उनकी अपनी सेंसिबिलिटीज है। तो यू सी द वर्नाकुलर, व्हेन आई से वर्नाकुलर, द लोकल लैंग्वेजेस, वो इमर्ज होती हैं इस टाइम में, उससे पहले नहीं मिलेंगे आपको। तो नाथ, जोगीस, ये सारे आपको दिखते हैं। जितना वो मूव करते हैं वो वॉइसेस हैं, वो आम लोगों को तावीज, मिराकल्स, उनको मेडिसिन एंड फाइनली वॉइस देते हैं। जोगियों के पास वॉइस है, और वो वॉइस सिर्फ उनकी नहीं है, वो वॉइस नीचे के लोगों की है जिनकी वो बात करना चाहते हैं। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखिए, यहाँ पे टिल्ला बालकनाथ है जो पाकिस्तान में चला गया है। मुगलों ने वहां पे दीवार बनानी थी, वहां की जोगी ने कहा कि नहीं बनानी, वो माने नहीं, तो कहते जी उसने किया ऐसे कुछ और गुस्सा किया और वो दीवार गिर गई। अब ये फैक्चुअली गिरी कि नहीं गिरी इसको आप छोड़ दीजिए, बट यू वुड कम अक्रॉस वेरियस इंसिडेंट्स जहां पर जोगियों का, नाथों का, शक्ता लोगों का गुस्सा स्टेट का, राणा पे, महाराणा सब पे काम कर सकता है। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, वो नुमाइंदगी करते हैं लोगों की। और जब लोगों के साथ बुरा होता है तो जोगी नाथ एक्टिव हो जाते हैं। वी हैड बैरागीज। विलियम पिंच ने ये साबित कर दिया कि हमारे जो बैरागी और जो ये नाथ थे, गोसाई थे, ये साइलेंट प्लेयर नहीं है, ये जंगलों में बैठ के नहीं बात करते थे। दे वर ऑल एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द स्टेट। देयर वर अखाड़ास, they were training the people. When the jihad came, you had warrior ascetics. We had warrior ascetics who were trained in the akhadas to fight, to protect, to ensure the protection of the temples. Temples को बचाना, societies को बचाना, communities को देखना, इसके लिए जोगियों ने, नाथों ने, जिसको विलियम पिंच वॉरियर एसेटिक्स कहता है, बैरागी, गुसाई, उन्होंने हथियार उठाने शुरू कर दिए। They started training the people. और कौन से पीपल? याद रखिए, नॉट द एलिट्स, नीचे से जो लोग आ रहे हैं उनको वो ट्रेंड कर रहे हैं, उनको वो, इसीलिए आपके पास गोसाई बैरागियों का बहुत स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रोल है सोसाइटीज को, स्टेट को बनाने में। पूरे की पूरी स्टेट ऑफ कुल्लू जो है वो बैरागियों की देन है। इवन इफ यू गो इनटू योर, आप इफ यू स्टडी द बीकानेर का स्टेट को स्टडी करें, जोधपुर को स्टडी करें, यू विल कम अक्रॉस द वर्ड्स नाथ। जब भी आपको नाथ मिलता है तो उसका एक मतलब है। वो नाथ जो है, जब वो स्टेट के साथ दिखते हैं आपको, तो उसका एक मतलब होगा। जस्ट गो डीप डाउन एंड स्टडी उस नाथों को। अब इसी तरह से सूफी आते हैं। सूफीज क्या करते हैं? दो तरह के सूफीज हैं। शुरुआत में हम चिश्तीज को पढ़ चुके हैं, हम सुरावर्दीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट कलंदर्स? कलंदरों को अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन हमारे contemporary sources में Qalandars were the ones who questioned the state. Qalandars were the ones who were approached by the people. यहाँ पे सखी सरवर है, यहाँ पे अल हुजवरी है, यहाँ पर बू कलंदर है। अगर आप उनको पढ़ेंगे, you will see, सिद्दी मौला आपने अगर सुना है दिल्ली के आसपास, they were so aggressive, they were so against the state,
जब लोग उनके पास जाते थे तो लोग ये मानते थे कि इन लोगों के पास जिन है, ये लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, ये उनकी बीमारियां खत्म कर सकते हैं। Up to modern times, 1900 तक, when there was a census in Punjab by the Britishers in 1891, they were surprised that most of the people of this area were following some kind of peers. हम अपने गानों में आज के टाइम में हम इसको भूल गए हैं, लेकिन अगर आप एक जनरेशन बैक जाएंगे, इट वाज ऑलवेज पीर जो आपके आसपास घूमते रहते थे, और वो पीरों का जो एक कॉन्टेक्स्ट था उसके थ्रू वी वर मूविंग, दे हैड अ मीनिंग फॉर अस। वो किनके थे? शेख मुनीर चिश्ती जब लाहौर जाते हैं तो वहां शेख अल हुजूरी की, जो ही इज कॉल्ड दाता गंज बख्श, तो दाता गंज बख्श की दरगाह पे जाते हैं और कहते हैं जिसका कोई नहीं, जिसका कोई पीर नहीं, उसका पीर शेख हुजूरी है। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, देन आई मूव टू थर्ड पार्ट। एक है सदा मूसा सुहाग। अब यू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड हाउ दे गिव पावर टू द पीपल। इवन अगर राजा छोड़िए, अगर शेख भी ताकतवर और पंडित भी ज्यादा सख्ती करेगा तो दे वुड क्वेश्चन हिम। सदा मूसा सुहाग जो थे, ही वाज अ कन्फॉर्मिस्ट। कन्फॉर्मिस्ट समझते हैं? ही वाज प्रॉपर फंडामेंटलिस्ट, पक्का जिसको कहते हैं अपने रिलीजन का, अपने ईमान का। तो कहा जाता है कि वो एक बार हज के लिए गए, तो ऑन द वे ही वेंट टू द दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। जब वो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में गए तो ही सॉ सम फीमेल्स डांसिंग देयर। अब आज के टाइम में हम क्या करेंगे, बट वो सम फीमेल्स वर डांसिंग देयर, तो दे वर नॉट कोर्टिजन्स, आम औरतें जो सोसाइटी से बाहर रहती हैं, जो आज के टाइम में भी अनफॉर्चुनेटली उनको हम प्रोस्टिट्यूट्स की तरह देखने लग पड़ते हैं, पर उस टाइम ऐसा नहीं है। वो देवर दोस्त, वो वहां पे डांस कर रही थी। तो दरगाह के आसपास जब वो बैठी थी तो सदा मूसा सुहाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने उनको भगा दिया कि भाग जाओ यहाँ से, ये तो बहुत बड़े शेख की दरगाह है। तो देवर थ्रोन आउट ऑफ दैट दरगाह। जब सदा मूसा सुहाग आगे जा रहे थे, हज करने जा रहे थे, तो आगे कहानी ये आती है कि उनको वही वेंट इनटू ट्रांस, वो बेहोश हो गए एंड उनके सपने में आया कि तुझे तेरी हज कबूल नहीं होगी, तेरा शेख तेरे से नाराज है, तेरा पीर तेरे से नाराज है। ही वेंट बैक, वहां पे जाके उनको लग गया पता कि शेख गुस्से हैं मेरे से, निजामुद्दीन हु इज दरगाह, डेथ हो चुकी है उनकी। व्हाट ही डिड, ही वोर रेड ड्रेस, उन्होंने औरतों के कपड़े पहने लाल रंग के, चूड़ियां पहनी, एंड ही स्टार्टेड डांसिंग देयर। देन ही वेंट इनटू ट्रांस। फिर वो खुश हो गए उनके शेख, एंड उसके बाद ही नेवर रिमूव्ड दैट ड्रेस, ही ऑलवेज वोर रेड ड्रेस ऑफ अ ब्राइड। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड सदा मूसा सुहाग। बहुत बड़े वो शेख हैं गुजरात में, किनके? जिनको आज आप ट्रांसजेंडर्स या हिजड़ास कहेंगे, उनके। He became the sheikh of those who were not given any space in the other so-called sophisticated and clean sections. उन सब के वो हैं। So that is how these religious traditions were acting in India. ये इंडियन चेंज है। यहाँ पे जब आप सूफियों को, जब इनको भक्तों को, जब शेखों को, सबको देखेंगे, how they changed themselves and how they became so much aware towards the sensibilities of this region, ये मैटर करता है। थर्ड सेक्शन आता है, इनको मानता कौन है। तब हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं कम्युनिटीज की। इस रीजन की 3 कम्युनिटीज की बात करूंगा आपके साथ, बाकी हम कर चुके हैं। पहले आते हैं जाट्स। अब उससे पहले याद रखिएगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वी टेंड टू थिंक लाइक अ स्टेट। हम राजा की तरह सोचते हैं। राजा के अकाउंट्स में, स्टेट के अकाउंट में जो भी ये लोग हैं, दे वुड बी एड्रेस्ड एज लोयली, बुरे, समटाइम द वर्ड वुड बी कमीन, दे वर नेवर एड्रेस्ड इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे। पर जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जसरत खोखर है, ही बिकेम द रूलर फॉर सम टाइम इन पंजाब। हाउ ही इज एड्रेस्ड का रिकॉर्ड में लिखा गया है, जितने बेवकूफ, पागल, बिगड़े लोग हैं, सब गुंडों को लेके ये घूमता है और इसने राज्य बना लिया है। The same kind of word was used by the state for Banda Bahadur. State would never accept these communities as equal.
They would never accept the sensibility of that community. So that community we have to locate, we have to see that source. हमारे पास सोर्स तो स्टेट का ही है, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि वो जब इनके बारे में बुरा बोल रहे हैं तो उनका गुस्सा है, वो सच नहीं है, लेकिन जो जीत रहे हैं वो सच है। सो जाट्स को जब हम स्टडी करते हैं, ह्यून सेंग कहता है किसी की नहीं सुनते। दे वर एक्सेप्टेड एज पीपल हु वर फ्री, सेल्फ ऑटोनमस, सेल्फ डिपेंडेंट। आपका सवाल ये होगा, ये धीरे धीरे मतलब जब हम कबीलों की बात करते हैं ना, तो आप वो मत सोचिए जो मूवीज में दिखाते हैं जिनको पता कुछ नहीं है। When we are talking about communities and tribes, we are talking about that zone which was always interactive with the city. 3 हिस्सों में आप दुनिया को सोचिए, शहर, जंगल और उसके बीच का एक जोन है ल्यूमिनस। उस जोन में जो ट्राइब रहती है, जो कभी भी जंगल की तरफ भाग सकती है और कभी भी शहर में आ सकती है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कम्युनिटी। उसमें जाट्स आते हैं, उसमें मेड्स आते हैं, उसमें खोखर्स आते हैं। वो कभी भी पीछे हट सकते हैं और कभी भी वो शहर की तरफ बढ़ सकते हैं। सो दैट दोज कम्युनिटीज मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड। अनफॉर्चुनेटली हमने इनको क्या बना दिया, वी स्टार्टेड सेइंग जाट्स शूद्र है। किस बेस पे? वी कैन नॉट टेल देम कि दे आर शूद्र। दे आर autonomous, self-autonomous people who raised cattle. अब जब आपके पास जानवर है बहुत सारे, तो आप क्या शहर में रहेंगे? कहाँ रहेंगे? You would always live near to those places जहाँ पे food है। But जाट्स को जब आप पढ़ते हैं, they had horses. महमूद ऑफ गजनी से जब वो लड़ते हैं, वो इतनी बड़ी आर्मी लेके जाते हैं, they even raised boats, हजार बोट्स उनके खिलाफ तैयार करनी पड़ती हैं। तो जो लोग घोड़ा चलाना जानते हैं, जिनके पास इतनी ताकत है कि वो पानी पे लड़ाई लड़ सकते हैं, जो इतने ताकतवर हैं कि इवन तिलक को उनकी हेल्प लेनी पड़ती है टू कैप्चर द रेबल, हाउ दोस जाट्स कैन बी एड्रेस्ड एज शूद्र, एज इफ दे वर विदाउट वॉइस। उनके पास, हाँ, ये कहा जाता है चर्चनामा में कि जब वो शहर में आते थे, दे वर टोल्ड टू डिसमाउंट फ्रॉम देयर हॉर्स, बट दे आर ऑन हॉर्स। हॉर्स में एक योद्धा को अगर आप घोड़े पे बैठा दो तो उसका मुकाबला कौन करेगा? For me, when Professor Irfan Habib said that Jats became powerful just because of the Delhi Sultanate, I disagreed. I argue that Jats were already acting as a strong stakeholders in the state formations. They were siding whosoever they were deeming it fit. Sometimes they would fight against the Tughlaqs, sometimes they would fight against the Ghaznavids, sometimes they would fight for Ghaznavid. So it was Jats who were very much aware about the state formations, and when the Sufis, Naths and Yogis emerged, they both aligned. They both aligned and a new notion came. A new notion came which had participation from the countryside. तो इस तरह से वो जो गांव थे, वो जो शहर था, जो उसका फर्क था, वो दोनों जुड़ते हुए सूफियों नाथों की वजह से, जब लैंग्वेज एक होती है दोनों की, दोनों ऊपर की तरफ आते हैं। लड़ाइयां खतरनाक थी। जब हम गुरु नानक देव जी का बाबर की जो लड़ाई के बारे में जब उन्होंने अहमदाबाद पे अटैक किया, वी जस्ट गो थ्रू दिस, इट इज अ ब्रूटल अटैक, बट एट द सेम टाइम वी हैड द कंडेमनेशन। हम पर हमारे उस टेक्स्ट में कंडेमनेशन भी तो है ना उसकी, कि तुम गलत कर रहे हो। वी हैड डिस्कशंस, इसी तरह से मेथ एंड खोकर कर रहे हैं। यानी इस पूरी डिबेट को, सो दैट यू कैन आस्क क्वेश्चंस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से, जब गुरु ग्रंथ साहिब आते हैं, जब आदि ग्रंथ लिखा जाता है इस एरिया में, आदि ग्रंथ इज नॉट सिंपली द composition of 5 Sikh gurus. It is a composition of various Sufis, various Bhaktas, Sikh gurus, sensibilities जो कई इलाकों से आ रही है। उस पूरे इलाकों को जब इकट्ठा किया जाता है, जहां पे नाथों के साथ डिस्कशंस है, जहां सूफियों की एक्सेप्टेंस है, जहां भक्तों की एक्सेप्टेंस है, जहां कास्ट को काटा जाता है, what it was, it is how we perceived लोकतंत्र, how we perceive that everyone must have a right to contribute. That is why this region was able to produce the only religious book which gave space to people of all religion. आज के टाइम में आप सोच ही नहीं सकते कि एक आपकी धार्मिक किताब जिसमें आज के हिसाब से मुस्लिम, भक्त, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ब्राह्मण, सबकी लैंग्वेज, सबकी वर्डिंग्स है, everything, everyone was given a voice. That is how we evolved. What that document did, that book condemned invaders.
That book condemned oppressive rulers. That book condemned brutal warfares. And that book talked about giving power to the people, trying to live through the dharma, trying to eliminate the boundaries between the people so that people could come together and they could achieve what was desired. So that book was written in our region. That book has a history of thousands of years. And that book tells us, it can act like a guide to us that yes, we were giving spaces. We were always in dialogue. It is not 1947. It is not simply 1950 that we started talking with each other. We were doing this since ages. So Constitution of India is just the evolution. It gave us more specific voice in line with the modern context. पर वो कहीं ऊपर से नहीं आया था, वो कहीं से इंग्लैंड से लेके आपके ऊपर जैसे हमें पढ़ाया जाता है वैसे नहीं थोपा गया था. अगर लोग उसको समझ ना पाए तो लोगों को आप समझा, उनके ऊपर आप उसको थोप नहीं सकते. USA did that in Afghanistan and failed. Pakistan failed, though it was in our region. They just diverted from what we were. Then they failed in their democratic processes. Still they are fighting कि democracy कैसे देखनी है. They have not given that kind of democracy which we taught. So what we were doing, it was our dharma, it was our ethos, it was how we see each other. That was samvad. इनको अगर हम इकट्ठा करेंगे, then we can say, yes, we were the janani of loktantra. Democracy can be debated, but loktantra can't be. Because loktantra is the process ethos of this very land. So with that, I rest my submission. With that, I once again thank you all for giving me such a patient hearing. So thank you. I take this opportunity to thank UGC for selecting our university for conducting the lecture on Bharat Loktantra Ki Journey. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of History Department for this event to our Honorable Dr. Priyatosh Sharma Sir. I would like to thank Professor Priyatosh Sharma Sir for sharing your knowledge with us and taking out your precious time to enlighten us on the significant aspects of political evolution of democracy. Thank you so much, sir, for sharing your views on community participation in state formation. We are enlightened a lot. At last but not the least, I would like to thank our teachers and audience for making this event a success. Thank you, everyone. Thank you, Professor Priyatosh, and thank you, Dhirendra, for your vote of thanks. However, we had said that if there are any questions you want to ask, sir, आपने बहुत ही अच्छा उद्बोधन किया और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कल्चरली हमको यूनाइट करती हैं. आज भी देखिए आपने शीतला की बात करी या आपने वीर which is that person, पीर की बात की, है ना, वीर तेजा गुगावीर मैम, गुगावीर. हाँ जी, वीर की बात की आपने. और बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो हमारे राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के एक से हैं. मैं हमारी यूनिवर्सिटी में कम से कम भी 22 स्टेट्स के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हर स्टेट से रिप्रेजेंटेशन है. तो मैं सोचती हूँ कि आज का आपका जो लेक्चर है ये केवल हिस्ट्री तक लिमिट ना करते हुए, जब हमने इसको एनएसएस के दायरे में लिया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हैं वो बहुत कुछ यहाँ से लेके जाएंगे. And this is a very out of the academics kind of a lecture which will definitely enrich everybody culturally, because it's not what we are looking at academics. किताबों में क्या लिखा है उससे हमारा इतना ज्ञान नहीं बनता जितना कि ज्ञान हमने आज सर ने दिया कि हम लोग किस तरह से ये बाउंड्रीज को, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को हटा के इस रीजन को देखें कि किस तरह से people had a voice. Thank you so much for enlightening us by citing the examples at different levels.
And definitely people the city has a character and people have a voice, right? I would also like to relate to what he said, that even now if some calamity happens in the city, then the residents come forward and provide food, provide kind of financial support for the people of that city. राइट हम जुड़े हुए हैं हर तरीके से और बहुत ही अच्छा अपने गांवों को शहरों से जोड़ा और कल्चर से देश को जोड़ा सो आई एम सो मच थैंकफुल टू यू सर वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग मोर सच काइंड ऑफ इंटरैक्शंस विद यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर फ्रॉम एनएसएस एंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री वीड लाइक टू थैंक यू एंड वी वुड एक्सटेंड अ वेलकम टू यू एनी टाइम यू कम टू जयपुर जरूर आइए IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विल ऑलवेज वेलकम यू थैंक यू so much and Jai Hind. Thank you, ma'am, for letting me have this opportunity to interact with all. So I hope I had some meaning. So anyone who wants to use the library of Punjab University, we have a very enriched library. That department of Punjab University came into existence in 1932. So we were located in Pakistan earlier, then we came to this region. So any student of yours, if they want to have access to our library, they are most welcome. Digital library है आपकी? Digital library, ma'am, there are certain documents which only we allow through permissions. All right. Okay, I We got have to it. take that permission. So I'm sure some students might someday take up research in this region and will definitely approach you and make use of the library. Thank you so much for that. Any questions, girls? Anyone would like to ask? No, thank you so much, sir. Okay, thank you, ma'am. Jai Hind.